Hello friends, very good evening. I welcome each one of you to this very exciting journey of the 7 rules of toppers. It's a CA edition. I have done it several times. Now this is being customized for the CA students. ये हम कई बार कर चुके हैं, बहुत बहुत सालों से मैं कर रहा हूं और आज सीए के बच्चों के लिए अलग से मैं इसको आपके लिए लेके आया हूं। बहुत थोड़ा सा मेरे बारे में, करीब 35 साल पहले मैंने स्कैनर नाम की किताब बनाई, जो आप ऊपर देख रहे हैं। स्कैनर, ये हमारा लोगो है, ब्रांड है। लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स इसको पढ़कर अपना प्रोफेशनल जर्नी सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं और क्वालिफाई कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस कर रहे हैं और कई लाख आज भी बच्चे इसको रेफर कर रहे हैं। टुडे आई थॉट दैट आई मस्ट कम बैक टू यू with this new medium, electronic medium, and what are we going to do is to talk about the 7 rules of toppers. This is a CA edition. I have wonderful stories for you. I have amazing insights for you. But before we start, let me clarify the 7 rules of toppers first. Let's have glimpses of 7 rules. एक ओवरव्यू हम लेते हैं। ये प्रोग्राम हमारा 1 घंटे का मैंने शेड्यूल किया है, 1.5 घंटे तक जा सकता है। वी मे गो अप टू 8:30. Although I have blocked the Zoom till 9, I'll be here till your questions are completed. आपके हर सवाल का जवाब मैं दूंगा, तब तक रहूंगा जब तक आपके हर सवाल का जवाब आ नहीं जाता है। हर रोज हम आपसे मिलने जा रहे हैं 7 बजे अगले 7 दिनों तक, और 7 आदतों की बात या 7 नियमों की बात हम लगातार करेंगे। आइए देखते हैं कि ये 7 रूल्स क्या हैं। आपको जब भी कुछ पूछने का मन करे तो आप हाथ उठा सकते हैं। आई मे रिक्वेस्ट यू टू आस्क और आई मे रिक्वेस्ट यू टू होल्ड द क्वेश्चन टू द एंड ऑफ द सेशन। आमतौर से इसको ऐसा करते हैं दोस्तों कि जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो एंड ऑफ द सेशन के लिए ही रोक के चलते हैं, और या बीच बीच में जब कभी मुझे लगेगा तो देन आई विल आस्क टू आस्क द क्वेश्चंस। आइए देखते हैं कि 7 रूल्स हैं क्या क्या। एक ब्रीफ ओवरव्यू। Rule number 1, take charge. Don't wait. You are a human being, you are capable, and you can take charge of whatever you are doing. So this rule number 1 is saying, take charge. What does it mean? Be proactive in your preparation. Nobody is going to prepare on your behalf. You have to prepare yourself, and others may be in a position to support you out. So what does it mean? Don't wait for the vibe, create the vibe. What is this rule number 2? See the finish line first. What is this finish line? This finish line is the end, which you want to have at the end. What you want to see yourself doing. This is see the finish line first. Plan with examination success in mind. Manifest the rank, then chase it. अभी हम क्या कर रहे हैं? हम एक एक करके इन रूल्स को देख रहे हैं। Today I'll be talking about the rule number 1, and then tomorrow onwards we'll be talking about the rest of the rules. Rule number 3, prioritize like a pro. Focus on what matters most. Pareto principle is there in front of us, with us, which is 80-20 principle. What does it say? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 80% रिजल्ट्स तो 20% एफर्ट्स से आते हैं। यानी आइए हम देखें कि हमारे एग्जामिनेशन में ऐसा कौन सा पार्ट है जहां हम 20% एफर्ट्स करके भी 80% स्कोर ला सकते हैं, या हम कैसे 80% रिजल्ट्स ले आएंगे। दिस इज रूल नंबर 3, प्रायोरिटाइज लाइक ए प्रो। Then friends, we have rule number 4, win together. See peers as partners, not competitors. Those who are studying with you, they are your partners, fellow students, not competitors. What does it mean? That collaboration is always greater than competition. We'll be talking about this rule also. Then the rule number 5 is listen before you speak. Whenever you feel like speaking,
whenever you feel like sharing something, it's better to learn and absorb before expressing. Listen more, grasp better. Then the rule number 6 is power of teamwork. Synergize strengths with peers. Rule number 4 says that your peers are not competitors, but you can collaborate with them. And rule number 6 is saying that what will happen if you will collaborate with them. So one brain may be a smart one, but many brains is unstoppable. And the rule number 7, the final rule, is stay sharp. Balance studies with health and self-care. आपको मालूम है कि अगर आपकी हेल्थ खराब हो जाती है तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगता और आप ठीक से पढ़ नहीं पाते. So it's better to stay fit and stay focused. So friends, this was the overview of the 7 rules. Let's go to rule number 1. This is about rule number 1. 7 rules of toppers. Rule number 1. What is this rule number 1? अभी तक हमने 7 रूल्स को ओवरव्यू की तरह देखा. आइए अब धीरे धीरे हम रूल नंबर 1 को समझते हैं. ये रूल नंबर 1 है क्या? 7 rules in front of us. Take charge, don't wait. See the finish line first. Prioritize like pro. Win together. Listen before you speak. Understand the power of teamwork and stay sharp. Rule number 1 is take charge, don't wait. Transform your CA examination preparation from reactive to proactive. Don't wait for the vibe, create the vibe. How can you create the vibe and what does it mean? इसका मतलब क्या है? कैसे आप चार्ज ले लें? अभी तक तो आपको लगता है कि पता नहीं कौन कौन चार्ज में है. इंस्टीट्यूट पता नहीं क्या करता है, टीचर पता नहीं क्या बताता है, दोस्त लोग पता नहीं कैसे पढ़ रहे हैं. तो अब आप कैसे चार्ज में आ जाएं? दिस इज रूल नंबर 1. द रीजन, whenever you couldn't qualify, whenever you are not successful, what is the normal reason which you give? Who or what do students usually give as a reason for exam results? So I request you to go to chat and write the normal reason which normally students give or you give. Please go to chat and write the reasons. That's great. I got one reason. Paper was tough or my preparation was not enough. You may type more reasons. What normally students say? Oh, so another reason I have, that there was a noisy environment, I couldn't prepare. That's great. Paper was out of trend. Wonderful. The institute had started asking from the chapters which were never asked. Wonderful. Wonderful. That's great. Very tough. I haven't prepared this time. Out of syllabus. Pattern was changed. Wonderful, friends. So thank you very much for your sharing. Let's see what does it mean. What happens and what are the reasons? Who or what do students usually give as a reason for examination results? Every reason reveals normally a reactive mindset that we are about to transform. आमतौर से जो हमारा माइंडसेट होता है वो रिएक्टिव होता है, तो वो कैसे बदल जाए कि हम प्रोएक्टिव हो जाए, आइए उसको देखते हैं. आमतौर से जो रिएक्टिव लैंग्वेज है वो क्या है? I can't study because I have to follow this schedule, means there was no other option, but you have to follow. It's not my fault the paper was tough. Or the syllabus is too vast.
This is reactive language. What may be the proactive language? I choose to prioritize. I will create a better approach. I'm responsible for my preparation. I can master this systematically. So I'm reacting to the situation, or I'm taking charge of the situation to do something about it. The language we use shapes our reality. जैसे जैसे आप इसको बदलते हैं तो आपको समझ में आने लगेगा कि जब आप नेगेटिव या रिएक्टिव लैंग्वेज यूज करते हैं तो ये आपके हाथों से ताकत ले जाता है. इट रिमूव्स योर पावर. और whenever you use proactive language, it puts you in control. You are in a position to see what else can you do. This is reactive versus proactive. So you can rewrite your reason. How can you rewrite? You can rewrite them proactively. This isn't just wordplay, but rewriting your brain. जब भी आप अपने रीजंस को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव में बनाते हैं तो दोस्तों ये खाली वर्ड्स को इधर उधर लिखना नहीं है, बल्कि आप अपने ब्रेन पे काम कर रहे होते हैं और यहां आप रिएक्टिव से प्रोएक्टिव हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई कांट सॉल्व PYQs because they are too difficult. Proactive, I will start with easier PYQs and build my confidence systematically. So you can try by rephrasing whatever you have written as reason, which normally you give. The shift in energy is immediate and powerful. Whenever you write something which is proactive, then the energy moves from negative to proactive. So this is reactive to proactive. The second thing is circle of concern versus circle of influence. Imagine two circles, one outside the other. The outer circle represents your circle of concern, things that worry you about, but you can't directly control. The inner circle is your circle of influence, things you can actually impact. It's like this. अब आप देख रहे हैं एक डार्क ब्लू है. This is circle of influence, like study schedule, past year questions, MTPs, RTPs, practice, mindset. और जो larger circle है, which is slightly less blue, this is circle of concern, ICAI policies, paper difficulty, others' performance. It's like institute has failed so many persons. There is some restriction which is being followed by the institute कि इस बार 500 ही निकालेंगे, इस बार 700 ही निकालेंगे, या रिजल्ट को हम 15% से ऊपर नहीं जाने देंगे. इस तरह की बहुत सारी बातें स्टूडेंट्स या हम लोग आमतौर से करते रहते हैं. जब भी हम इस तरह की बात कोई करते हैं जो हमारे सर्कल में नहीं है, ऐसे सर्कल में जिसके बारे में हम कुछ कर पाए, तो वो दोस्तों हो जाती है सर्कल ऑफ कंसर्न. और जो बात जिसके बारे में हम कुछ कर पाए वो हो जाती है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. सो एनर्जी ग्रोज वेयर यू इन्वेस्ट इट. जब भी आप सर्कल ऑफ कंसर्न में जाकर काम करने लगते हैं तो एनर्जी रिड्यूस हो जाती है. कहाँ की? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की. यानी सर्कल ऑफ कंसर्न बढ़ने लगता है. और जब आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में काम करने लगते हैं तो एनर्जी आपकी डाइवर्ट हो जाती है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में, और वो आपका धीरे धीरे बढ़ने लगता है. और आप को कैसे एनर्जी सर्कल ऑफ कंसर्न से सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में डाइवर्ट करनी है, इसको हमें देखने की कोई जरूरत है. टेक चार्ज, डोंट वेट. रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव वाज द फर्स्ट थिंग, and circle of concern to circle of influence is the other thing. Now the question is that how can we move from circle of concern to circle of influence? So I'm going to share a very powerful scientific research with you, the brain's 3 levels, how we learn and feel, जिससे आप अपने माइंड का आर्किटेक्चर पता लगा पाएंगे और समझ पाएंगे कि आपको कैसे करना चाहिए, जहां से आप सर्कल ऑफ कंसर्न से सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आएंगे. What are the 3 brains? The one
The first one is reptilian brain, primal instincts, survival. The second one is limbic system, emotions and experiences. The third one is neocortex, advanced thoughts, reasoning and planning. These three brains influence how we react, feel and learn. Examples: in the case of reptilian brain, our survival instincts, a sudden fire alarm triggers an instant jump and search for exits, bypassing conscious thought. कहीं भी आग का घंटी बजी, आग का अलार्म वाला फायर अलार्म आया, तो आपके मन में क्या आता है? भागो, जान बचाओ। आप और कुछ समझ ही नहीं पाते। सो दिस इज ऑटोमेटिक, रिफ्लेक्सिव, सर्वाइवल रेस्पॉन्स। नो टाइम टू थिंक, जस्ट एक्ट टू स्टे सेफ। Governs autonomic functions vital for survival, such as breathing, heart rate, reflexes, aligns with the necessities for immediate instinctual reactions in the life threatening situation. जब भी आपको लगता है कि अरे तो जीने मरने का सवाल है, तो आपका रेप्टिलियन ब्रेन जो लोअर लेवल पे है वो एक्टिव हो जाता है। जब वो एक्टिव हो जाता है तो फिर वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। जो आपके पास ब्लड सप्लाई है, जो आपके ब्रेन की ब्लड सप्लाई है, वो उतनी ही है। अगर रेप्टिलियन ले रहा है तो ऊपर नहीं जा पाएगा। ऊपर क्या है? इसके ऊपर है द लिम्बिक सिस्टम, द इमोशनल सेंटर। एग्जाम्पल: यू रिसीव अ पुअर ग्रेड ऑन अ टेस्ट एंड इंस्टेंटली फील अशेम्ड, एम्बैरेस्ड और एंग्री बिफोर थिंकिंग अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग। ये नेचुरल है, इमोशनल है। कौन सा लेवल ऑफ ब्रेन काम कर रहा है? लिम्बिक सिस्टम। इमोशन बेस्ड रिएक्शंस, fear of failure, shame or defensiveness, triggers internal thoughts like I am not good enough or I'll never succeed, may lead to avoiding the subject or the teacher. Encompasses emotions, social interactions and memory formation, nuanced responses to navigate social situations influenced by emotions, social cues and past memories. Then the third one is the neocortex, the thinking brain. Example: you calmly review your test, notice your mistakes, and make a plan to improve your preparation for the next examination. It is rational and reflective, can delay emotional reactions, engages in problem solving, learning from feedback, and goal setting. So, where would you like to work? Obviously, you would like to work on the neocortex, where you are in a position to understand that you are in control, you'll be able to do something about it. This is neocortex. The thinking brain facilitates higher order thinking, abstract thoughts, imagination and planning, essential for innovative and out of the box thinking. Now, how this brain will help us in the learning process? Brain integration in learning. Reptilian reacts first. Fear triggers instant physical responses, increase heart rate, emotions, color experience, माने हमारा जो experience है उसको रंग दे देते हैं कि कैसा था, अच्छा था, बुरा था। Anxiety or confidence shapes how academic situations are perceived and remembered. Thinking brain regulates rational thought, calms nerves, creates strategies and guide academic choices. So, हम क्या करें? नाउ हमारे पास सवाल यह है कि हम क्या करें। हमें देखना होगा कि कौन से ब्रेन का ट्रिगर आया है और कौन से ब्रेन को हम एक्टिवेट होने दें। अगर हम रेप्टिलियन को होने दे रहे हैं तो क्या होगा, लिम्बिक को होने दे रहे हैं तो क्या होगा, और नियोकॉर्टेक्स को होने दे रहे हैं तो क्या होगा। 3 लेवल से, लेवल 1 रेप्टिलियन, लेवल 2 लिम्बिक, लेवल 3 नियोकॉर्टेक्स। किसको हम एक्टिवेट होने दे रहे हैं? ब्लड सप्लाई यहां से जा रही है, वो उतनी ही है। अगर ब्लड सप्लाई रेप्टिलियन ने ले ली तो वो नियोकॉर्टेक्स तक नहीं जाएगी।
अगर लिम्बिक ने ले ली तो नियोकॉर्टेक्स तक नहीं जाएगी। हम किसको एक्टिवेट होने दें? दिस इज इन माई कंट्रोल। हाउ? रिकॉग्नाइज ट्रिगर्स, आइडेंटिफाई अलार्म ब्रेन एक्टिवेशन टू रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। फायर अलार्म बजा, रुक जाइए, भागने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पहले देख तो ले एग्जिट कहां है। फॉल्स अलार्म तो नहीं है, कौन आपके आगे है, कहीं आपके भागने से वो उसको तो चोट नहीं लग जा रही है। एक्टिवेट फोकस, यूज ब्रीदिंग, mindfulness to engage thinking, brain for concentration. And now create support, build environment for optimal learning conditions. Master your three brains for success. Awareness, recognize how instinct, emotions, and reason shape academic experience. Balance, manage stress, regulate emotions, and focus thinking. Success, apply knowledge to handle academic challenges and become an empowered learner. Your brain is the most powerful learning tool. Know how to use it. ये देखिए, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो क्या होता है? जब आप एक्सट्रीम स्ट्रेस में हैं तो रेप्टिलियन 60% एक्टिव हो जाता है, ब्लड सप्लाई यहां चली जाती है। 30% ही लिम्बिक में जाता है और 10% केवल नियोकॉर्टेक्स को जा पाता है। यानी जब आप एक्सट्रीम प्रेशर में हैं तो आपकी सोचने, समझने, याद करने, चीजों को जोड़ने, फैक्ट्स को मास्टर करने की कैपेबिलिटी ही खत्म हो जाती है। यानी आपको अपने रेप्टिलियन यानी लोअर लेवल ब्रेन को कम एक्टिव रखना है। अगर मॉडरेट स्ट्रेस लेवल है तो दोस्तों आप देख रहे हैं रेप्टिलियन 40% एक्टिव रहता है, यानी ब्लड फ्लो वहां जाता है, 35% लिम्बिक में जाता है और 25% नियोकॉर्टेक्स में जाता है। लेकिन अगर आपका स्ट्रेस लेवल नॉर्मल है तो फिर आपके पास नियोकॉर्टेक्स में 60% ब्लड सप्लाई है, 60% एक्टिव हो जाता है नियोकॉर्टेक्स नॉर्मल में, शांत हैं। तो अब आपकी एबिलिटी टू थिंक, रिमेंबर, रेस्पॉन्ड, लॉजिकली रीजनिंग, हर चीज आपकी इंप्रूव होती चली जाती है। तो आप अपना स्ट्रेस लेवल नॉर्मल रखेंगे या और बेटर रखेंगे, इट्स योर चॉइस। एंड जैसे जैसे आप इसको कर पाते हैं वैसे वैसे योर एबिलिटी टू रिटेन, एनालाइज, अंडरस्टैंड goes up. So this is something like blood flow and the brain management. With the help of this, what happens? You move from circle of concern to circle of influence. This is mind over matter, brain's influence and concern. सर्कल ऑफ कंसर्न में आप तब जाते हैं जब आपका रेप्टिलियन एक्टिव होता है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आप तब आते हैं जब आपका नियोकॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है। और इस तरह से आप अपनी एबिलिटी टू रिटेन एंड स्टडी बढ़ा ले जाते हैं। एक सिचुएशन लेते हैं, आप पास नहीं हो पाए, अनसक्सेसफुल। सर्कल ऑफ कंसर्न क्या है? रेप्टिलियन लिम्बिक, पैनिक, सेल्फ क्रिटिसिज्म, अवॉइडिंग द सब्जेक्ट। और नियोकॉर्टेक्स क्या करेगा? एनालाइज, फीडबैक, सीक इंस्ट्रक्टर्स हेल्प, रिवाइज स्टडी प्लान, प्रैक्टिस डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स, आइडेंटिफाई कि कौन कौन से चैप्टर्स में, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स में आपको लगातार दिक्कत आ रही है, कैसे इस पे हम काम करें। यहां देखिए एक और मजेदार बात है, हर इंडिविजुअल का लर्निंग मेथड अलग अलग होता है। मुझे मालूम है एक मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उनकी आवाज ही खराब हो गई। कैसे खराब हो गई? ही इज कंपनी सेक्रेटरी, उनकी आदत थी पढ़ते समय बोलने की। वो पूरा सीएस उन्होंने जोर जोर से पढ़कर पास किया। जब बोलते थे तो उनके कान में जाता था, कान में जाता था तो दिमाग में दर्ज होता था। अलग अलग मेमोरी गेट्स हैं, किसी को आंखों से समझ में आता है तो वो याद हो जाता है, कोई सुन के करता है अलग अलग ढंग से, कोई पढ़ के करता है। तो आप देखिए कि आप कैसे सीख पाते हैं, कहां से आप चीजों को और ज्यादा रिटेन कर पाएंगे और वो आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू टू थिंक and spend 5 minutes to write what is in your circle of concern and what is in circle of influence. We'll meet just after 5 minutes. Welcome back, friends. So you have understood
that what is in your circle of concern and what is in your circle of influence. And you are also now aware that how can you move the things from circle of concern to circle of influence. आइए देखते हैं आमतौर से जो स्टूडेंट्स बताते हैं वो क्या होता है. सर्कल ऑफ कंसर्न में ICI एग्जामिनेशन पैटर्न्स, पेपर डिफिकल्टी लेवल, कोचिंग क्वालिटी, other students' progress, एग्जामिनेशन रूमर्स एंड स्पेकुलेशंस. ज्यादातर तो ये होता है कि इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट का परसेंटेज डाउन करने के लिए बहुत सारे लोगों को फेल कर दिया. आई एम नॉट श्योर, मैं आप कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं. आइए देखें कि हम क्या कर सकते हैं, आखिर मैं क्या कर सकता हूं. सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या है? डेली स्टडी शेड्यूल, नंबर ऑफ PYQs, MTPs, RTPs सॉल्व, रिवीजन फ्रीक्वेंसी, स्टडी एनवायरमेंट, स्लीप एंड हेल्थ हैबिट्स. तो मैं क्या कर सकता हूं? कोई भी चीज दोस्तों कभी भी मुकम्मल नहीं होती. मुझे एक शेर याद आ रहा है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमां नहीं मिलता. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पूरी चीज मिल जाए. जिसको पूरी मिल जाती है उसको भी पूरी नहीं मिलती. तो आपने अक्सर देखा होगा कि सड़क पर खेलते हुए बच्चे कितने खुश रहते हैं, और जो कार में बैठा हुआ है जिसके साथ पता नहीं कौन कौन से गैजेट्स हैं वो भी रोता हुआ जा रहा है. तो आपको समझना होगा कि मेरे पास क्या है और इसको मैं कैसे और इंप्रूव कर दूं. वी हैव अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट अबाउट दिस. यूज योर I and R. आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं. यूज योर I and R. I इज इमेजिनेशन एंड रिसोर्स, R इज रिसोर्सेस. आपके पास अभी क्या है और आप क्या कर सकते हैं. आई रिमेंबर अ वेरी स्मॉल लिटिल इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ. मेरी दो भतीजियां हैं, अब तो दोनों बहुत बड़ी बड़ी हो गई और दोनों US में हैं. बहुत साल पहले, 25-30 साल पहले हम लोग कहीं घूमने गए. एंड व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम लोग क्या करते थे कि बच्चे जो है जब भी घूम कर आते थे तो उनसे हम कहते थे कि कुछ लिखो कि क्या क्या हुआ यात्रा में. नो, इट्स अ मेमोयर और ट्रेवलॉग काइंड ऑफ थिंग. सब बच्चों से कहा, किसी ने जाके रोना शुरू कर दिया, पेन कहाँ है, पेंसिल कहाँ है. कोई कह रहा है ताई जी मुझे दे दो. जो बच्चे वहां थे उन्होंने अपना कहीं बैग में से कोई पेंसिल निकाली, कुछ किया. किसी ने कहा कि हम शाम को लिखेंगे, अभी कैसे लिख सकते हैं, अभी तो सो के उठा हूं, अभी तो बाथरूम जा रहा हूं. ठीक है. मुझे याद है कि छोटी वाली बेटी, सबसे छोटी वाली बेटी, उसका नाम है ईशा. उसने क्या किया, उसने कहीं से एक बहुत रफ पैड उठा लिया जो हमारे यहाँ यूं ही फुटकर नोट्स बनाने के लिए पड़ा होता था बीच में सेंट्रल टेबल पे, और एक पेंसिल उसने कहीं से अरेंज कर ली और उसने आउटलाइंस ड्रॉ की कि ये 3-4 बातों पर मैं ट्रेवलॉग लिखने जा रही हूँ. एंड देन शी केम टू मी, शी अप्रोच्ड मी एंड से, ताऊजी इज इट ओके विद यू? ओ माय गॉड. देखिए उसने देखा कि वो क्या कर सकती है. उसके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में इस समय क्या है, जो है उतना तो करो. और आओ इंस्ट्रक्टर से कंसर्न ले लो, कंसेंट ले लो और समझ लो कि ये राइट डायरेक्शन है या नहीं है. आपके पास बताने वालों की कोई कमी नहीं है. बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन आई एम गोइंग टू गिव माय व्हाट्सएप नंबर टू यू. हर स्कैनर पे, पहले पेज पे, हर स्कैनर के पहले पेज पर मेरी ईमेल आईडी और मेरा मोबाइल व्हाट्सएप नंबर लिखा रहता है. तमाम बच्चे मुझे व्हाट्सएप और ईमेल करते रहते हैं और मैं 4-6 घंटे के अंदर रिस्पॉन्ड कर ही देता हूं. किसी भी स्टूडेंट को आज तक ऐसा हुआ नहीं कि जो उससे सपोर्ट चाहिए हो वो मिली ना हो. सो व्हाट इज एसेंशियल दैट यू गो बैक टू योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. आप देखें कि क्या कर सकते हैं और कैसे उसको आप अभी निपटा ले जाएंगे. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. तो दोस्तों, रूल नंबर 1, टेक चार्ज डोंट वेट में हम लोगों ने 3 बातें अभी तक देख ली हैं. रिएक्टिव वर्सेस प्रोएक्टिव, सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, एंड 3 लेवल्स ऑफ ब्रेन. यहां तक अगर आपको लगता है कि यू हैव सर्टेन क्वेश्चंस, देन यू कैन रेज योर हैंड एंड आई विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू यू. मैं आपसे को तुरंत परमिट करूंगा
और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप चाहें तो अभी भी पूछ सकते हैं और नहीं तो बात के लिए भी रख सकते हैं। सविका बंसल जी ने पूछा है, एक ही सब्जेक्ट में सारा दिन निकल जाता है तो हम टाइम कैसे मैनेज करें? थैंक यू वेरी मच सविका फॉर आस्किंग दिस, एंड दिस इज समथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 बताएगा हाउ टू प्लान एंड हाउ टू स्टिक टू द प्लान। उसकी बात हम करते हैं। अभी तक हमने 3 लेवल्स ऑफ ब्रेन तक की बात कर ली है, रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव, सर्कल ऑफ कंसर्न टू सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड 3 लेवल्स ऑफ ब्रेन। आइए आगे बढ़ते हैं। 4 human endowments, it's a beautiful concept. Within this, take charge. What does it mean? That everybody, each one of us is having, okay, in the meantime Anjali Yadav has raised the hand. So Anjali, allow me to give permission to you. Where are you? Let me find this. She is here and मैंने आपको, हाँ, yes Anjali, now you can speak please. Sir, out of the 3 levels of brain you हाँ, हाँ. mentioned, which one influences decision making the most in professional life? Oh wow, thank you very much. Neocortex. बहुत अच्छा आपने पूछा। मैं इसको और बताता हूं आपको। इसमें देखिए होता क्या है कि 3 लेवल्स हैं। एक है रेप्टिलियन, दूसरा है लिम्बिक और तीसरा है नियोकॉर्टेक्स। यानी एक सबसे नीचे वाला, एक उसके बीच वाला और एक सबसे ऊपर वाला। जो नीचे वाला है वो सर्वाइवल वाला है, सांस नहीं आ रही, प्यास लगी हुई है, कैसे शाम को भोजन मिलेगा, वगैरह वगैरह। बीच वाला इमोशनल बात करता है। मैं एक सेकंड आपको उस स्लाइड पे ले भी चलता हूं। यहां हम आ गए, यहां आ गए। लिम्बिक ये है, देखिए रेप्टिलियन, सडन फायर अलार्म, governs autonomic functions vital for survival such as breathing. Limbic encompasses emotions, social interactions and memory functions. Neocortex is rational reflective, engage in problem solving, decision making, learning from feedback and goal setting. तो जो आपका नियोकॉर्टेक्स है, जो सबसे ऊपर वाला है, वो आपको मदद कर पाता है इस चीज में कि कैसे आप क्या समझ पाती हैं, और उसकी मदद से फिर आप आगे कोई डिसीजन ले पाती हैं। यानी करना हमें और आपको क्या है, हमें और आपको ये करना है कि कैसे हम ये जो अपर लेवल वाला है नियोकॉर्टेक्स, इसको ज्यादा एक्टिव रखें। लिम्बिक और उसके बाद रेप्टिलियन, लिम्बिक रेप्टिलियन कम एक्टिवेट हो। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे रेप्टिलियन और लिम्बिक काम करने लगेगा, नियोकॉर्टेक्स तक बात नहीं जाएगी। रेप्टिलियन, लिम्बिक, नियोकॉर्टेक्स। तो हमें नियोकॉर्टेक्स पर ज्यादा एक्टिव रहना है, वहां डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोराइजेशन, अंडरस्टैंडिंग आती है। ये आपको जवाब दे पा रहा है अंजलि जी? Yes, sir. आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकती हैं। No, sir, it is fine. ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, And थैंक यू। So we have moved from reactive to proactive, circle of concern to circle of influence, and then 3 levels of brain. अब बच्चों हम अगली चीज समझने जा रहे हैं, वो है 4 ह्यूमन एंडावमेंट्स। 4 ह्यूमन एंडावमेंट्स क्या है? यानी एक ऐसी बात, कोई एक ऐसी ऐसी गिफ्ट जो ईश्वर ने, ऑलमाइटी ने ह्यूमंस को दी है, जो अदर देन ह्यूमंस के पास नहीं है, एनिमल्स के पास नहीं है। क्या क्या है? कुछ कुछ एनिमल्स में थोड़ी बहुत हो सकती है, बट आमतौर से ह्यूमंस में ये 4 ह्यूमन एंडावमेंट्स हैं। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, द एबिलिटी टू थिंक अबाउट योर थिंकिंग। आप सोचते कैसे हैं उसकी भी सोच आपके पास है। मॉनिटर योर स्टडी पैटर्न्स एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस। दूसरा है इमेजिनेशन,
You can imagine the power to visualize success and create new solutions to study challenges. आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, आप सीए हो जाएंगे, फिर क्या होगा? पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो कैसे उसमें मदद ले लें, तो कैसे वो सॉल्व हो जाएगी. Then the third one is conscience, your inner moral compass, knowing right from wrong in your preparation approach. क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना ठीक होगा, क्या करना ठीक नहीं होगा, कहां हम मेमोराइज कर लें और कहां हम अंडरस्टैंड कर लें. यहां मैं एक ब्यूटीफुल बात आपको बताता हूं. ज्यादातर सिलेबस ऐसा बनाया जाता है, क्वेश्चन पेपर ऐसा बनता है कि 100% कोई भी उसको जल्दी सॉल्व नहीं कर सकता. बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की बात करें तो अलग बात है. पूरा सिलेबस इस तरह से डिजाइन होता है कि वो आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर थोड़ा ऊपर होता है. यानी आप 85 टू मे बी 88-90% बातें तो अपने सिलेबस की समझ पाते हैं, बाकी समझ नहीं पाते हैं. कोई कोई हो सकता है 95% तक समझ जाए, लेकिन 5% तो उसकी भी समझ में नहीं आएगा. तो जो समझ में नहीं आ रहा, आप क्या करते हैं? क्रैम कर लेते हैं, याद कर लेते हैं कि ये तो भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा, लाओ इसको याद कर लेता हूं. यानी आप जानते हैं कि आपके लिए क्या करना ठीक होगा और क्या करना ठीक नहीं होगा. आप जानते हैं कि सब कुछ याद कर लें, रट लें, समझ में कुछ ना आए, तब तो फिर एक लेवल पे जाकर आप रुक जाएंगे. सीए फाउंडेशन तो आप पास कर सकते हैं रट कर, इंटरमीडिएट भी थोड़ा बहुत निकल जाएगा, फाइनल नहीं निकलेगा. फाइनल में तो फंस ही जाएंगे. सो 4 ह्यूमन एंडाउमेंट्स आर देयर: सेल्फ अवेयरनेस, imagination and conscience. And then the fourth one is independent will. यानी मुझे और आपको ईश्वर ने ताकत दी है कि हम समझ पाए कि हमें क्या करना चाहिए. द एबिलिटी टू एक्ट बेस्ड ऑन माई वैल्यूज, नॉट योर मूड्स और सर्कमस्टेंसेस. ये है 4 ह्यूमन एंडाउमेंट्स. अब आइए एक कोई सिनेरियो देखते हैं. एक सिनेरियो है, 11 बजा है रात का. डिलेमा: you are exhausted but you have 2 PYQs pending. आपके शेड्यूल में था कि दो कितने कितने PYQs करेंगे, कितने MTP करेंगे, वगैरह वगैरह. 2 सवाल अभी भी पेंडिंग हैं, लेकिन आपके दोस्त जिनका एग्जामिनेशन इस बार नहीं है या जो सीए नहीं कर रहे हैं आर वॉचिंग नेटफ्लिक्स. व्हाट इज द प्रोएक्टिव चॉइस यूजिंग योर ह्यूमन एंडाउमेंट्स? सेल्फ अवेयरनेस, यानी आपको पता है कि अगर आप आज PYQ नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो क्या होगा. इमेजिनेशन, आप जान पा रहे हैं कि इसकी वजह से कल और परसों आपके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा और इस तरह से ये प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ता चला जाएगा. कॉन्शियस, व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग, आपको नेटफ्लिक्स देखना चाहिए या 2 क्वेश्चन सॉल्व कर देने चाहिए. इंडिपेंडेंट विल, आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है. यू चूज. You would like to watch Netflix with your friends, or you would like to solve the questions and practice. This is 4 human endowments and their role. How can you use 4 human endowments? मैं तो आपसे कहूंगा कि जब भी आपको कोई डिलेमा हो, दुविधा हो, आप तुरंत रुक जाइए. गिव अ पॉज. यहां मान लीजिए कि एक पॉज बटन है, यहां बटन है. पॉज समझते हैं ना, जैसे मोबाइल में होता है, पॉज कर दिया, 2 पैरेलल लाइंस, पॉज. तो ऐसे ही मान लीजिए कि यहाँ 2 पैरेलल लाइंस है, उसको छू दिया, पॉज. पॉज में आपने 4 बातें की, देखा क्या हो रहा है, मैं कैसे रिएक्ट करने वाला हूं. देखिए फिर से रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव बात आ गई. फिर आइए देखें कि जो मैं करने जा रहा हूं वो सर्कल ऑफ कंसर्न में जाएगा कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जाएगा. इमेजिन कीजिए कि जो भी आप करने जा रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा. आप कॉन्शियस, सही क्या है, गलत क्या है, आपको करना क्या चाहिए. और इंडिपेंडेंट विल, आपके साथ कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकता. सो इन दिस मैनर यू यूज 4 ह्यूमन एंडाउमेंट्स. आइए एक और सिनेरियो लेते हैं, सिनेरियो 2, डिस्ट्रैक्शन टेस्ट. 3 days बिफोर योर एग्जामिनेशन, फैमिली इज गोइंग फॉर ट्रिप एंड प्रेशराइजिंग यू टू ज्वाइन. फ्रेंड्स से ज्यादा बड़ी चीज हो गई. हाउ डू यू रिस्पॉन्ड प्रोएक्टिवली? अगेन सेल्फ अवेयरनेस, क्या होगा क्या नहीं होगा, यू अंडरस्टैंड. इमेजिनेशन, जाने से आगे क्या असर पड़ेगा, मन क्या कर रहा है. कॉन्शियस,
सही क्या है, गलत क्या है। इंडिपेंडेंट विल, आप चाहें तो जाएं, चाहें तो ना जाएं। मुझे याद है, मेरे दो बेटे हैं, इनकी स्टोरी मैं कल आपसे शेयर करूंगा जब हम रूल नंबर 2 की बात करेंगे। दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एक ने 2.5 साल में पास किया, एक ने 9.5 साल में पास किया। कैसे हुआ, क्या हुआ, इस स्टोरी को हम कल आपसे शेयर करेंगे। लेकिन मैं आपसे याद बताऊं कि हम पूरी फैमिली स्विट्जरलैंड जा रहे थे घूमने, और एक बेटे ने उन दोनों में से चूज किया कि वो नहीं जाएगा, जबकि उसका वीजा बन चुका था, उसके टिकट्स लिए जा चुके थे, उसकी सारी बुकिंग्स हो चुकी थी। लेकिन उसका रिजल्ट क्योंकि फेवरेबल नहीं आया, तो ही डिसाइडेड नॉट टू गो। व्हाट इज दिस? फॉर ह्यूमन एंडावमेंट्स इज प्लेइंग देयर रोल। क्या हो रहा है? फॉर ह्यूमन एंडावमेंट्स अपना काम कर रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस, उसे समझ में आ रहा है कि मन बहुत कर रहा है, लेकिन इमेजिनेशन जाने से क्या होगा। कॉन्शियस, सही क्या है, गलत क्या है। इंडिपेंडेंट विल, डैड आई एम नॉट फीलिंग लाइक गोइंग, मत जाओ बेटा। दिस इज फॉर ह्यूमन एंडावमेंट्स। सो बच्चों, हमने रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव पढ़ा, हमने सर्कल ऑफ कंसर्न टू सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पढ़ा, 3 लेवल्स ऑफ ब्रेन समझे, एंड फॉर ह्यूमन एंडावमेंट्स पढ़ा। अब आइए, आखिरी बात इस प्रेजेंटेशन की है, जो इस रूल की है, वो है बिकमिंग अ ट्रांजिशन फिगर। एवरी फैमिली, every batch, every coaching center has pattern. वो पैटर्न में कुछ हेल्पफुल होगा और कुछ डिस्ट्रक्टिव होगा। A transition figure is someone who breaks negative patterns and sets new standards. जो नेगेटिव है, आइए उसको छोड़ दें, फॉर ह्यूमन एंडाउमेंट्स इस्तेमाल करें। हम बदल जाएंगे, हम बदल सकते हैं, तो कैसे बदल जाएंगे? You know several stories where a CA ranker broke the pattern of dependency on coaching, developed disciplined practice, and inspired others to follow. आप लोगों के बीच में ये सब तरह तरह की स्टोरीज चलती रहती हैं कि अरे उसने कैसे क्वालिफाई किया, अरे कौन कैसा था। आई हैव वन ऑफ निष्ठा बोथरा, जिनकी अभी AIR2 आई फाइनल में, और कैसे उन्होंने इसको किया, ये हमारे स्कैनर द चैनल पे पूरा एक ब्लॉग है, इंटरव्यू लिया CA चारू अग्रवाल ने, उसको भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे CA निष्ठा इस विशेष सर्कल से बाहर आई और कैसे ट्रांजिशन फिगर बनी। 10 स्टूडेंट्स बिकम्स अ ट्रांजिशन फिगर। हाउ टू ब्रेक योर पैटर्न। क्या क्या पैटर्न्स हो सकते हैं? प्रोक्रेस्टिनेटिंग अंटिल द लास्ट मिनट, मेकिंग एक्सक्यूजेस व्हेन कॉन्सेप्ट्स गेट डिफिकल्ट, skipping revisions because it feels boring, blaming external factors for poor performance। ये आपके पैटर्न्स हो सकते हैं। तो क्या करें? रिकॉग्निशन इज द फर्स्ट स्टेप टू ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले आइए समझें कि हो क्या रहा है। ईच एडमिशन रिप्रेजेंट्स करेज एंड द बिगिनिंग ऑफ चेंज। जैसे ही हम मानते हैं कि ओहो हो ये हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपने खुद को खोल लिया। काहे के लिए? परिवर्तन के लिए, चेंज के लिए। सो व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ अ ट्रांजिशन फिगर? Being a transition figure means you don't accept that's how it has always been done. Rather, you create new pattern of excellence. Recognize patterns, identify negative cycles in your study approach or environment. Take responsibility, own your roles in perpetuating or changing these patterns. Create new standards, establish better practices that others can follow, inspire others. Your transformation becomes a model for fellow students. So दोस्तों, इस तरह से हम हो जाते हैं ट्रांजिशन फिगर। You take charge, you don't wait. It means you can set a new standard for yourself and others. You don't inherit patterns, you choose them. You have the power to be first in your family, in your batch, or circle to achieve CA success through proactive principles. So, अभी हमने क्या किया? रूल 1, टेक चार्ज, डोंट वेट। टेक चार्ज में हमने 5 बातों को समझा। रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव, सर्कल ऑफ कंसर्न टू सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। इसमें मदद कौन कर रहा है? 3 लेवल्स ऑफ ब्रेन, 4 ह्यूमन एंडावमेंट्स, एंड देन विद द हेल्प ऑफ द 4
you will become a transition figure. इस तरह से दोस्तों हम बिना इंतजार किए चार्ज ले लेते हैं. पर्सनल एप्लीकेशन, योर नेक्स्ट 24 आवर्स. अगर आपने सिर्फ समझ लिया और इसको अमल में नहीं लाया, अप्लाई नहीं किया, तो ये वर्थलेस है. Write 3 proactive study actions for the next 24 hours, maybe in chat or in your diary. Specificity is crucial. Vague intentions create vague results. Read, reason and repeat. This is our mantra. मार्क्स तो मिलेंगे ही. और कल हम बात करने जा रहे हैं इन 2 लड़कों की जो दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं. क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने 2.5 साल में किया और किसने 9.5 साल में किया और क्या क्या इनकी कहानी थी. इसके साथ हम सेकंड सी द फिनिश लाइन फर्स्ट रूल की बात करेंगे. 7 रूल्स हैं हमारे पास. द रूल्स ऑफ टॉपर्स, द टेक चार्ज, डोंट वेट की बात आज हमने की. और रूल नंबर 2 की हम बात करेंगे, सी द फिनिश लाइन फर्स्ट, कल हम बात करेंगे. So with the help of this, I have completed whatever I was having in my mind to share with you. Now it is open for discussion and questions. I have few things in chat. Let me find what it is. Okay. एक सवाल आया है, सर हाउ टू सेट प्लान फॉर एग्जामिनेशंस. सो ये हम रूल 2 और रूल 3 में भी बात करेंगे, समझेंगे. एक सवाल आ रहा है, सर हाउ टू मेंटेन अ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. ब्यूटीफुल. आइए देखते हैं कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में हम कैसे बने रहें. मैं एक बार फिर से प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं आपके पास और दिखाता हूं कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है क्या और कैसे हम उसमें जाते हैं. लेट मी फाइंड द स्लाइड फर्स्ट. ये है, देखिए, सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. जब भी कोई चीज आपके कैपेसिटी, कंट्रोल, इन्फ्लुएंस से बाहर है और आप उसके बारे में चिंता करने लगते हैं, तो होगा क्या. एक एग्जांपल देते हैं. कल का पेपर बहुत कठिन भी आ सकता है. इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कैसा पेपर दे देगा. अब ये आपके बस में है? आपके बस में तो नहीं है. आईसीएआई की पॉलिसी है, पेपर की डिफिकल्टी लेवल है, इससे आपसे कोई लेना देना नहीं. दूसरे बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे तो इंस्टीट्यूट रिजल्ट को रिड्यूस कर देगा. इंस्टीट्यूट की पॉलिसी है कि 18% से ज्यादा नहीं देगा. आप कुछ कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते. अब अगर इसके बारे में आप लगातार सोचते रहेंगे तो क्या होगा, ये जो सर्कल ऑफ कंसर्न है ये बढ़ जाएगा. नेगेटिव एयर यहां है. एनर्जी ग्रोज वेयर यू इन्वेस्ट इट. अब आप इसी से परेशान हैं. अब ये आपका जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है अंदर वाला डार्क ब्लू, ये कम होता चला जाएगा. क्यों? क्योंकि कंसर्न बढ़ता चला जा रहा है. आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे. यानी आप करें क्या, जैसे ही आपको ये समझ में आए कि आपका माइंड सर्कल ऑफ कंसर्न में जा रहा है, कैसे पता चलेगा कि सर्कल ऑफ कंसर्न है? आपको पता चल जाएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में. अगर किसी चीज के बारे में आप कुछ फिलहाल नहीं कर सकते तो फिर बच्चों वो सर्कल ऑफ कंसर्न हो गया. जैसे ही आपको पता चला कि इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, सोचना बंद कर दीजिए. कैसे बंद कर दीजिए? 3 लेवल्स ऑफ ब्रेन. तुरंत देखिए कि एनर्जी कहां जा रही है, कैसे एनर्जी डाइवर्ट करें. आइए देखें कि हम अपने इन्फ्लुएंस में जो है उसको करें. अब आप ये बच्चों कह सकते हैं, बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर जब मन ही नहीं लग रहा है तो पढ़े कैसे, तो नया समझ में नहीं आ रहा है ना. वेरी गुड. आई अप्रिशिएट योर कंसर्न. कंसर्न नॉट इन्फ्लुएंस. आइए देखें कि इन्फ्लुएंस में क्या है. रिवीजन तो है ना, आसान सवाल तो है ना. पिछली बार जब आप रिवाइज कर रहे थे तो किसी क्वेश्चन को करने में आपको थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्टी आई थी. जो आपने स्कैनर में वो जो फ्रंट पेजेस में हमने चार्ट दिया हुआ है वह लिख लिया था, क्वेश्चंस टू रिवाइज, पूरा एक चार्ट दिया हुआ है. जिस क्वेश्चन को आपको लगे कि इसको रिवाइज करना है वहां चार्ट पे चढ़ा लीजिए.
कहीं और लिखने की जरूरत नहीं है। स्कैनर इज ए कंप्लीट बुक। अब आप तुरंत उस वाले पेज को खोल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है। यानी फ्रेश नहीं है, फ्रेश होता तो नियो कॉर्टेक्स पर जोर पड़ता, पुराना है तो अब लिम्बिक या रेप्टिलियन को अपना ब्लड कंज्यूम करने दीजिए। नियो कॉर्टेक्स पे बहुत ज्यादा जोर जा ही नहीं रहा है। तो आपने क्या किया, आप सर्कल ऑफ कंसर्न से सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे आ गए। आपने सॉल्व किया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आपने एक और सॉल्व किया, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। आपने 2-3 सॉल्व किया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब आपको लगा कि अरे ठीक हो गया, चलो चलो पढ़ते हैं। देखो नया वाला कॉन्सेप्ट कौन सा था जो समझ में नहीं आ रहा था, उस पर काम करते हैं। सो इन दिस मैनर फ्रेंड्स, वी मूव फ्रॉम सर्कल ऑफ कंसर्न टू सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। आइए देखें कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या है जहां हम आसानी से कर पाएंगे, जिसको करके हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जिसको करने में हमें मजा भी आ रहा है। और पहले उसी को कर लेते हैं ना। दिस इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, और कुछ नहीं हो रहा। तो भी आपने जो सबसे ज्यादा पसंदीदा सवाल है जिसका जवाब आपको याद है, तो जिसको टंग पे रखा हुआ है, मसल्स की मेमोरी में है, आप सोते सोते भी जवाब दे सकते हैं। चलिए एक शीट ऑफ पेपर ले लीजिए, उसी पे लिखना शुरू कर दीजिए। रिवाइज ही हो गया, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है। माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। बजाय इसके कि माइंड को डाइवर्ट करने के लिए आप सिनेमा चले जाएं, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए आप गाना सुनने लगें, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए आप किसी को फ़ोन मिला लें, उससे अच्छा तो यह है कि जो बहुत आसान वाला सवाल है एक बार फिर से लिख कर देख लें। जितनी बार रिवाइज करेंगे दोस्तों, वो 3 घंटे जो एग्जामिनेशन वाले हैं उसमें तो आपके लिए आसान हो ही जाएगा। रिप्रोड्यूस करना है, चैलेंज हमारा आपका ये है कि रिप्रोड्यूस करना है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, विजडम लाइज इन रिपीटिशन। जो जिसको हम कहते हैं ना विजडम है, तो विजडम आती कहां से है? विजडम तो रिवाइज करने से आती है। आपने देखा छोटे बच्चे ए कितनी बार लिखते रहते हैं, महीनों उनसे ए लिखवाया जाता है, ए लिखते रहते हैं। जिन्होंने सुंदर सुंदर ए उस जमाने में लिखना सीख लिया, उनकी सुंदर हैंडराइटिंग हो गई। जो वो ए बेमन से लिखते रहे, लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, उनकी हैंडराइटिंग खराब ही हो गई। यानी बार बार करने से, बार बार करने से आपकी मसल्स में ये आ जाता है। तो लेट द कॉन्सेप्ट्स गो फ्रॉम नियोकॉर्टेक्स टू योर मसल, मसल में ट्रांसफर कर देते हैं। ये तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है ना। आपका नाम अगर हम पूछते हैं या कहते हैं कि अपना नाम लिखो, तो क्या आपको याद करना पड़ता है कि आपके नाम की स्पेलिंग क्या है? मुझे तो कभी याद नहीं करना पड़ता कि मेरा नाम अरुण है, तो ARUN आई एम सपोज टू राइट। यानी हुआ क्या कि ये नियो कॉर्टेक्स से मसल्स में आ गया। अंगूठे को, उंगली को पता है, पेन को पता है कि स्पेलिंग क्या है। कैसे हम चीजों को माइंड से, ब्रेन से मसल्स में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, ये करते करते हो जाता है। जो आसान है उसको बार बार कर लीजिए, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जाइए और यहां से आपका काम शुरू हो जाएगा। आई होप ये आपको कुछ जवाब दे पा रहा है। डज इट आंसर योर क्वेश्चन पटेल साहब? ओह दैट्स ग्रेट, आपने तो थैंक यू सर पहले ही लिख दिया। वंडरफुल। सर ग्रुप 2 अभी से फ्रेश स्टार्ट करें तो बोथ ग्रुप क्लियर होगा? इज इट पॉसिबल? आई फील आई कैन डू इट। ओह वेरी गुड। इफ यू फील दैट यू कैन डू इट, स्टार्ट कर दीजिए। अभी आपके पास टाइम है। आज हम बात कर रहे हैं सितंबर, ये अक्टूबर फर्स्ट वीक में। तो आपके पास अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, 3 महीने पूरे हैं। सिस्टमेटिकली प्लान बनाइएगा और कर लीजिएगा तो हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक टू यू। एक और कोई है सर, हाउ टू सेट प्लान फॉर एग्जामिनेशन? यस, विल टॉक अबाउट दैट। ये हमारे रूल 2 और रूल 3 में आएगा और इसकी हम बात करते हैं। एनी अदर थिंग फ्रेंड्स? अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ उठाइए या चैट में लिखिए, तो मैं आपको अनम्यूट भी कर सकता हूं। मुझे आपके साथ बात करके बहुत मजा आया। कल मेरे पास एक बहुत खूबसूरत कहानी भी है, 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, जिनकी तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई, मैं आपसे शेयर करूंगा। और रूल नंबर 2 की भी बात करूंगा, जहां आपके कुछ सवालों के जवाब भी मिलने शुरू होंगे, जहां हम ये समझ पाएंगे
कि फिनिश लाइन क्या है और उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड कल हम मिलते हैं और कल हम रूल नंबर 2 की भी बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, sleep well, see you tomorrow at 7 p.m. sharp.